second time you going to work in in the Simran. So how was the experience working? What second time? Which is the second film? Second film. No, I don't think so. I'm in Simran. ये वाली जो सिमरन है वो राज के बिना है. Okay. But how important do you think Aligarh is in the context of breaking stereotypes about homosexuality? You think It is very important. I think we as filmmakers are also opening up to the idea now. I saw Kapoor and Sons and now Aligarh, and there was Bombay Talkies. I think I'm very happy that we are the perception and the scenario and the way we portray gay characters on screen is definitely changing. And thanks to filmmakers like Hansal Sir, Karan Johar and the writers, I think it's a great change. इसके अलावा बॉलीवुड के जो अवार्ड शोज है उनको भी अपना नजरिया बदलना चाहिए इन तरह की छोटी फिल्म. I really can't comment on that. या क्या किसको क्या करना चाहिए. हमारा जो काम है हम वही कर सकते हैं. हमारा काम है कैमरा के सामने ईमानदार रहना, अपनी ऑनेस्टी से काम करना. बाकी जो जिसको I won't say because I got an award for Shahid, Filmfare Award. So I don't know who to change what, but I think the kind of response we get from the audience and the kind of love we get from you guys is more than any award. What best appreciation you get from your fans and Bollywood? Sorry, best. Appreciations or the comment you get from the Bollywood or स्पेशल कॉम्प्लीमेंट फॉर योर कैरेक्टर. Lot of great comments, He spoke Malu so well. Malayalam. yeah. So Being a that North was Indian, I think. that was quite a task, but I think I managed pretty well. पत्रलेखा, what do you want to say about the Indian award shows and इस तरह की छोटी फिल्मों को भी चांस मिलना चाहिए? What do you think? I don't know. I think there's a criteria. There are jury members. There's a criteria. There's a jury member who's sitting there and choosing the film. So I'm sure they know their job, and yeah. But getting an award like what he got in Australia is way bigger than a lot of awards. So I'm very happy that Manoj sir has got it, and I'm sure in future, in couple of months, he's gonna get much more of them. When can we see you both together? I think soon. Very soon. We are going to collaborate. Yeah, there's something that we both are reading and thinking about. So I guess after City Lights, it's time that we should come back together. thank you. 377 abolish कर देना चाहिए. कब का कर देना चाहिए था यार. वो तो जिन लोग जो लगा के गए थे उन लोगों ने भी अबॉलिश कर दिया कब का. हम लोग पता नहीं क्यों उनसे बस एक ही चीज़ सीख के उसको पकड़ के बैठे हैं. और बाकी बहुत कुछ चीज़ें सीखने के लिए जो हम सीख सकते हैं, अच्छी बात है वेस्ट से. बट 377 को पकड़ के बैठे हैं. आई थिंक डेफिनेटली उसको अबॉलिश कर देना चाहिए. इट्स हाई टाइम. थैंक यू. यस, विजुअल ले लीजिए. यस. हाँ बुला रहा हूँ. आप भी बुला रहा हूँ. थैंक यू. हाँ एक सेकंड. पत्रलेखा जी एक सेकंड. मंगेश भाई एक सेकंड. हेलो. अरे सर आप बैठो, उनको एक मिनट. दो आदमी करके ले लो. सर अभी यहाँ से ना लेफ्ट साइड में. बस छोड़ दो. सर यहाँ पे वन मोर चलो यार. एक मिनट रुको. एक सिंगल Rao out. Yeah.
Not together. Yeah. Or you want to go in? पहले निशी को कर ले। नहीं सर आप दो ना सर। तू कर ना, तू बोल ना। दोस्तों क्या कहना चाहिए अलीगढ़ मूवी के बारे में, जिससे बहुत सपोर्ट करते हैं, क्या कहना? सबसे पहली बात तो मैंने ये पिक्चर रिलीज़ के पहले देखी थी। शैलेश जी हैं, हंसल जी हैं, जो हमारे दोस्त हैं, और तभी मुझे बहुत अच्छी लगी थी पिक्चर। आई फ्रेंड के मनोज एंड राजकुमार बोथ वर फैंटास्टिक इन द फिल्म। जो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट था हंसल जी का, उसके लिए भी बहुत यू नीड करेज टू मेक अ फिल्म ऑन सच अ सब्जेक्ट, एंड आई ऑलवेज न्यू कि मनोज ने बहुत अच्छा काम किया था पिक्चर में, एंड फाइनली आई थिंक ही इज़ गेटिंग व्हाट ही डिजर्व्स एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर। आपको सबसे ज़्यादा किसका अच्छा परफॉर्मेंस लगा? देखो मतलब मनोज की पिक्चर है तो ऑब्वियसली के एंड ही इज़ मेड कंप्लीट जस्टिस टू इट, एंड ऑफ कोर्स देयर राजकुमार वाज डन अ वेरी गुड जॉब। तो दोनों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। उसमें से मनोज वाज एब्सोल्युटली जस्ट अप देयर, ग्रेट। सर इसके अलावा इन फिल्मों को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, तो मतलब बॉलीवुड में उसको सराहा नहीं गया, लेकिन बाहर बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया। तो क्या कहना चाहेंगे, बॉलीवुड में इस तरह की छोटी फिल्मों को भी सराहना मिलनी चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि बॉलीवुड में एक तो छोटी मोटी फिल्में ऐसा नहीं सोचना चाहिए आदमी। इस तरह का डिफरेंट सब्जेक्ट लेके जो लोग आते हैं, जो लोग ऐसी पिक्चरें बनाते हैं, और अगर करेक्ट पिक्चर बनाते हैं, अच्छी पिक्चर बनाते हैं, तो ऑब्वियसली उन्हें सराहा जाता है और उसे सराहा गया है। बट एवरी फिल्म हैज़ इट्स ओन ऑडियंस। एक उसका कभी कभी लिमिटेड ऑडियंस होता है, कभी बड़ा ऑडियंस होता है, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द फिल्म। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी इस तरह की फिल्में बन रही हैं एंड इट इज़ रीचिंग द वाइडर ऑडियंस इन द वर्ल्ड। इसके अलावा आपकी एक मराठी फिल्म करने वाले हैं रितेश देशमुख के साथ, तो उसके बारे में बताएं, क्या स्टेटस है उसका? स्टेटस ऐसा है कि वेल स्क्रिप्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आई है, तो होपफुली नेक्स्ट 1-2 महीने में मैं कुछ बता सकूँगा उसके बाद। थैंक यू सो मच। सर अलीगढ़ के बारे में क्या कहना चाहिए? आपने देखी फिल्म, क्या जी। कहना चाहेंगे परफॉर्मेंस के बारे में? ये मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म थी, और ऐसी फिल्में और बननी चाहिए। हंसल मेहता जैसे डायरेक्टर एक नया हॉराइजन खोल रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी था कि ऑडियंस को नई तरह की कहानियाँ सुनने को मिले, और ये एक और कदम है उसकी तरफ। Anand sir, it takes a lot of courage to make a film about homosexuals in India, considering the times that we are having. Definitely, it takes a lot of courage, and these are the times where we should tell all these new stories, and it's an opening up for us as a makers and for our audience. So it's a growing industry in terms of you can say in terms of stories, in terms of thinking. So we need these gutsy directors to come up and give us a new beginning. सर इसके अलावा अलीगढ़ बहुत सारे फेस्टिवल से गई है, लेकिन कमर्शियली मतलब इस तरह की फिल्में अच्छा नहीं कर पाती, तो उसके लिए क्या रीज़न है? उसका एक ही रीज़न है कि हम डायरेक्टर्स थोड़े डरपोक हैं, कहानियाँ सुनाने से डरते हैं, इसलिए ऑडियंस को आदत नहीं पड़ती। तो अब जितनी ये कहानियाँ हम सुना पाएंगे, जितने गट्स के साथ हम आगे बढ़ पाएंगे, ऑडियंस को इस तरह की कहानियों की आदत पड़ेगी, और वो बॉक्स ऑफिस पे भी दिखेगा। Any upcoming project you want to share with us? हाँ जी, Any upcoming project of yours? कहानी पे काम कर रहा हूँ, जल्दी बताता हूँ। So you're collaborating with Anurag Kashyap. There were reports for a film. How true are these? वो मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स में से एक हैं, और मैं हमेशा से चाह रहा था कि कुछ मिल के करें, तो अब मौका मिल रहा है तो कर रहे हैं। It's a love story set in UP. उसके बारे में अनुराग बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। But you're looking forward to the collaboration. थैंक यू सो मच। अभी आप लोगों ने वीडियो किया, खाली वीडियो देना है।
नवाज सर क्या कहना चाहेंगे मूवी अलीगढ़ के बारे में जो बहुत सारे अवार्डों से गुजर चुकी बहुत कमाल की फिल्म है ऑफ कोर्स, और हंसल साहब ने बनाई है फिल्म, मैंने देखी है, मैंने बहुत पहले देख ली थी फिल्म और बहुत ही इम्प्रेस हुआ था मैं मनोज भाई की परफॉर्मेंस से। ऑफ कोर्स मूवी को बाहर के अवार्डों से सराहा गया, बॉलीवुड में ऐसा कोई अवार्ड नहीं, ऐसी मूवी को अवार्ड देना चाहिए, आपको ऐसा लगता है? देखिए, कुछ फिल्में होती हैं जो जिनको बाहर बहुत अप्रिसिएशन मिलता है, जिसमें रमन राघव भी है, उसमें मुझे भी अवार्ड मिला था जहाँ पे ये स्पेशल मेंशन का, मनोज भाई को बेस्ट एक्टर का मिला। कुछ फिल्में होती हैं जिनको बाहर बहुत पसंद किया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे थोड़ा सा है, वक्त लगेगा अभी। नवाज सर, इसके अलावा जिस कैटेगरी में मनोज सर को जो अवार्ड मिला है उस कैटेगरी में आपका भी नाम था, तो क्या कहना चाहिए? मुझे भी मिला अवार्ड यार, और मनोज भाई मेरे सीनियर हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। तो इस फिल्म की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनकी आपने फिल्म देखी है? अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस है मनोज भाई की इसमें। आई थिंक बहुत कम एक्टर हैं हमारी कंट्री में जो कर पाएंगे इस तरह की परफॉर्मेंस। फिल्म बहुत सारे फेस्टिवल से गुजर चुकी है, लेकिन बॉलीवुड में इस तरह की फिल्म की सराहना नहीं हुई है, तो क्या कहना चाहिए? अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह की मनोज भाई की परफॉर्मेंस की, स्पेशली अगर मैं कहूँ कि मनोज भाई की परफॉर्मेंस की सराहना होनी चाहिए। नए मेहमान ने दुनिया में कदम रखा, कैसे विश करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे करीना? अभी तो सैफ अली खान के बारे में अभी तो यही है कि स्वस्थ रहें दोनों, जच्चा बच्चा जो है, ऊपर वाले से दुआ बहुत ही अच्छे से परवरिश हो और बहुत अच्छे से स्वस्थ रहे, ये ज़्यादा। आपकी कोई आने वाली मूवी के बारे में हमें बताना चाहिए? मेरी तो अभी रईस ही है जो आएगी।